Okay, let me know once my screen is visible. या आपको होमवर्क दिया था शीट 1 एंड शीट 2 में डेटा अंडरस्टैंड करना है. So what you guys did, you understood like this: column name, rows, data है. That is one of the way. See, you can, but ideally what you should do is you should take 2 to 3 records, 2-3 record लीजिए and then understand whether all the entries are correct or not. Okay, you can check this one. इसके details एक बार check. First of all, I think what I can observe is instead of date, some numbers are there. First observation, right? Then take one more, like maybe like this. See, it says Kavita Joshi, but gender is some mismatch in gender, right? So likewise, you can identify issues with the data. Ideally, what you should do, go by column, individual column में check कीजिए null है कि नहीं और कुछ data missing है कि नहीं, and then row wise, column as well as row, right? Clear? You can try this for both the data. So as we discussed, as a data analyst, your job is to find the insights and actions. Insights मतलब जो आपको डेटा में देख के आप बता सकते हो, that is insights. Action is as a business owner what person should do. Okay, जैसे हमने बोला था कि average price $600 है, right? Yesterday we checked. So average price of or average $600 है. As a business owner, actions और business के terms में इसका meaning है on an average if I sell anything out of my stores, मुझे 600 का profit हो जाएगा, right? But I need to sell whatever in a month. मैं जो भी बेचता हूँ 600 के आसपास I am getting a profit, right? So yeah, and then we discussed about process, how to find out insights and actions. So basically you need to start with data understanding, right? Data understanding. Then next is data formatting, right? Then quick insights. Yeah, I'm using sort and filter. Then data consolidation and then data summarization, right? And then data visualization. Right? Yes, steps, if you follow these steps, it will be easy for you to understand. So step 1 data understanding hai. So what we are doing is we are going column and then a row. So in this first name, last name, initial, department, grade, total experience, right? Experience as a manager, gender hai yahan pe, then CTC is there, date of joining, date of birth. वेरी सिंपल डेटा, कॉलम का नाम देख के आपको समझ में आ रहा है कि क्या डेटा है, राइट? बट वन प्रॉब्लम, ये टोटल जो एक्सपीरियंस है, ये जो नंबर है, ये मंथ है कि ईयर है? आपने डेटा अंडरस्टैंडिंग किया है ना? सो ये मंथ है कि ईयर है? और आपको कैसे पता चला कि ये मंथ है? यस, ओके, डेट ऑफ बर्थ से पता लगा, या एब्सोल्युटली, या सो वन मोर फैक्टर डेटा अंडरस्टैंडिंग में, इतना नहीं कि सिर्फ आपको डेटा क्या है देखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूनिट, मतलब मंथ है, ईयर है, सीटीसी है, इस आइडियली इट शुड बी इन द करेंसी, ऑल दोस थिंग्स, राइट? सेम वे इन चार रिलेटेड डेटा आपको देखना है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा देश डॉलर अरे
ठीक है, समझ में आया। मतलब एज इन एवरी कॉलम आपको नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द डेटा, मतलब उसमें क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस, यूनिट, मेजरमेंट का यूनिट वगैरह। क्लियर? So this is nothing but data understanding. But next part comes is in once आपको पता चला कि क्या डेटा है, next job is formatting. Formatting it has many reasons. One of the reason is जैसे आपको अभी समझ नहीं आ रहा है मंथ है ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसका रेफरेंस से चेक करना पड़ेगा, बट आप देखोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग नंबर्स। व्हाई इट इज नंबर्स? देयर आर मेनी रीजंस। एक तो हो सकता है कि जहां से ये डेटा कॉपी हुआ है उसका डेटा और एक्सेल ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, compatibility इशू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बनाया माइक्रोसॉफ्ट, some other people might have created some other software, तो उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, एज इन डेटा टाइप मैच नहीं होता। मोस्टली आप जब कॉपी पेस्ट करते हो इंटरनेट से तो आपको हमेशा वो फॉर्मेटिंग गलत आता है, राइट? कलर, फॉन्ट, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट सपोर्टेड। तो सेम केस विथ एक्सेल, एक्सेल में भी सेम हो सकता है। ये बाहर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, मे बी पीपल कस्टमाइज क्रिएट करके कस्टमाइज बनाते हैं। सो व्हेनेवर यू कॉपी पेस्ट समथिंग इनटू एक्सेल इट मे नॉट मैच। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन इज फॉर्मेट करके लो एज पर एक्सेल। तो ये कैसे करना है? सिंपल, विल स्टार्ट विद दिस। पहला कॉलम है, दिस इज अ टेक्स्ट, राइट? पहले तो देन राइट क्लिक, go to format cells. Okay, just a second. Click format cells, दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए आपको सुटेबल डेटा टाइप्स यहाँ पे दिखेंगे। एक्सेल इतना ही सपोर्ट करता है, नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, परसेंटेज, टेक्स्ट, स्पेशल कुछ है तो साइंटिफिक, कस्टम, राइट? अलग अलग डेटा टाइप। सो व्हाट डेटा टाइप इट इज? टेक्स्ट। ओके, TEXT। तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप में चेंज हो गया। आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है बिकॉज इनिशियली वो टेक्स्ट में था। यू कैन ऑब्जर्व हियर, ये देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आई विल सिलेक्ट, राइट क्लिक, फॉर सेल। क्या आना चाहिए आइडियली? डेट, राइट? यहाँ पे डेट, तो डेट सिलेक्ट कीजिए। आपको और बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, ये देखिए आपको जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉट इशू। यहाँ पर थोड़ा आपको जूम करना पड़ेगा। ओके, हो गया। नाउ यू कैन इजीली कंपेयर, राइट? डेट ऑफ ज्वाइनिंग इतना है तो 24 ईयर हो सकता है क्या? मंथ हो जाएगा, राइट? डिपेंड, व्हाटएवर इट इज, मे बी आप कोरिलेट कर सकते हो। सेम यहाँ पे कैसे करना है? बाय द वे डेटा भी लिमिटेड है इसलिए मैं इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ, डेटा बहुत ज्यादा है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे आप? यहाँ से क्या? बट यहाँ तो नीचे नहीं है। सो वन शॉर्टकट इज, फर्स्ट रो सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, जितना डेटा है उतना ही सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, देन राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, वापस फॉर्मेट सेल, डेट, can select any date, press OK,
double click. Now you can understand. So ये options है, इसके advantage not only this. तो सेम वे में वी नीड टू फॉर्मेट एवरीथिंग. चलो क्विकली लास्ट नेम इनिशियल्स डिपार्टमेंट पहिला दिवस आहे का तुमचा? ओके ठीक आहे. सो ये 3 डेटा टेक्स्ट में है राइट. तो वी नीड टू फॉर्मेट. तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स एंड टेक्स्ट. ओके. So this is how data formatting आप करते हो right. Then again ये दोनों का फॉर्मेट क्या होगा? नंबर, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर है. So I should format. It is not clear नंबर है कि टेक्स्ट है right. नंबर है कि टेक्स्ट है क्लियर नहीं है. So what I can do is we'll keep it as a general. Okay, general. There is a shortcut as well. जो हम ये लॉन्ग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये देखिए शिफ्ट कंट्रोल, मैंने डेटा सिलेक्ट किया, इसको फॉर्मेट करना है. सो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ से भी आप डेटा फॉर्मेट कर सकते हो राइट. क्लिक सिलेक्ट नंबर. ओके, दिस इज अ शॉर्टकट. और यहाँ थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो इफ यू नीड टू एडजस्ट. फॉर्मेटिंग रिलेटेड सारे ऑप्शंस होम में आपको मिलेंगे. होम टैब ये देखिए यहाँ पे है ना. सारे फॉर्मेटिंग मतलब बोल्ड करना है, कैपिटल करना है, अंडरलाइन देना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट इंक्रीज करना है, डिक्रीज, अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट. ओके, ये सब कुछ होम टैब है. तो ऑब्वियसली डेटा जो हम फॉर्मेट कर रहे हैं टू मैच द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट हम डायरेक्टली राइट क्लिक करके यूज कर रहे हैं. ओके, आपलं थोडं पुढे झालंय, डेटा फॉर्मॅटिंगचं सुरू झालंय. सो तुम्ही बघा, जर नसेल तर रेकॉर्डिंग आहेत अवेलेबल, तुम्ही करू शकता. Next, gender. Gender again is text. So who will tell me online gender क्या फॉर्मेट करना है? Yes. Text. Okay, text right. Okay. Shift control down, right, format and text. Now it is CTC मतलब क्या रहता है? Cost to company, salary, whatever annual salary है वो. Okay, उसको CTC बोलते हैं, annual salary, right? तो इसका फॉर्मेटिंग क्या करना है? नंबर. नंबर क्यों नहीं? ये तो नंबर है ना, दिख रहा है आपको. Yes, online. Why not number? इसको ज्ञानेश्वर, कृष्णा, आपको क्या लगता है? निकिता, yes. Why we should not keep it as a it should be क्योंकि CTC नथिंग बट अ सैलरी. आपको नंबर मिलता है कि एक्चुअल पैसा मिलता है? दिस इज अ मनी राइट. आप बैंक में जाके उसे करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो. अभी डिजिटल है, एवरीबडी यूजेस ऐप, बट इसका मतलब वो नहीं कि सिर्फ नंबर है आपके पास. इसको कुछ सिग्निफिकेंस है. इट हैज सम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस राइट. तो इसलिए इसको एक्चुअल करेंसी में करना चाहिए आपको.
So shift control down, right click and currency ऑप्शन में देखिए, ओके करेंसी दिख रहा है। एंड देन यहाँ से आप डिसाइड भी कर सकते हो सिंबल वगैरह, डेसिमल पॉइंट, ये माइनस रिलेटेड, ऑल दिस ऑप्शंस, मतलब निगेटिव नंबर कैसे दिखाने के लिए फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शन है। सो आई विल प्रेस ओके, ये देखिए नाउ इट अभी दिख रहा है। इसका एडवांटेज क्या है, जब भी आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, सम ऑफ सैलरी निकालना है मुझे, तो क्या करना है, फॉर्मूला ऑटो सम, यहाँ पे दिख रहा है क्या, ऑटो सम, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला सब टोटल, ओके। सो दिस इज नथिंग बट it should get auto formatted, but let's मैन्युअल एक बार फंक्शन लिख के देखते हैं। हाँ, नाउ ये ऑटोमेटिकली वो रुपीज सिंबल आ गया है, बिकॉज दिस एज अ करेंसी, तो इसलिए इसके ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन करोगे आप तो वो सिंबल कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट। सो सेम यू गेट फॉर एज एंड वगैरह है। बाय द वे दिस एज, एनीवन नोज अबाउट एज और Current date minus date of birth. yes, current date minus date of birth, बट करंट डे यहाँ पे नहीं है। और डू यू थिंक एज यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आपको क्या लगता है? ठीक है, मे बी आपको बता दिए एज असाइनमेंट, मे बी वी कैन गिव इट, बट आप सोच सकते हो कि यहाँ पे एज नाम का कुछ कॉलम आप ऐड कर सकते हो क्या, इज इट पॉसिबल टू ऐड एज, ओके। क्यों ऐड करना है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको समझ में आएगा, बट जस्ट थिंक कि मे बी आज होमवर्क ले सकते हो आप ये कि एज कैलकुलेट करना है, ओके, एम्प्लॉय का एज कैसे करना है आप एक बार देख लो, नहीं आया तो कल हम करेंगे। सो फॉर्मेटिंग पार्ट क्लियर। सो ये स्टार्टेड विद, हम बोल रहे थे कि एक इनसाइट एज अ डेटा एनालिस्ट आपका काम रहता है कि इनसाइट निकालना एंड एक्शंस, बिजनेस को एक्शंस, एज इन एग्जांपल हमने एक दिया था, जो भी एक किराना शॉप का ओनर है, राइट, उसको हमें बताना है कि क्या पॉसिबल है, पिछले महीने में कितने का सेल हुआ। सो आई कैन यूज सम ऑटो सम और सम नाम का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि आप पिछले महीने आपने 20,000 का सामान बेच दिया, वट एवर 20,000 25,000, एंड ऑन एन एवरेज आप 200 या 300 का सामान बेचते हो, तो ये हो गया इनसाइट, क्योंकि आप डेटा आपके पास है, उसके ऊपर आप बेसिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, राइट। एक्शंस क्या होंगे, आप बोल, यू कैन सजेस्ट कि जो भी लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है उनको आप निकाल सकते हो, और ऑन एन एवरेज यू आर सेलिंग 200 रुपीज, मतलब 200 रुपए का सामान आप बेच रहे हो, बट इसको आप बढ़ा सकते हो बाय गिविंग सम ऑफर, नहीं तो कुछ डिस्काउंट आपको मिलता है ना, 1,000 रुपए के परचेज के बाद यू विल गेट समथिंग 100 रुपीज ऑफ, बट आपको खरीदना नहीं रहता, बट ऑफर की वजह से आप उतना परचेज करते हो। और बाय टू गेट थ्री, बाय टू गेट टू, आपको रिक्वायरमेंट एक ही का रहता है, बट दे विल फोर्स यू टू बाय समथिंग एल्स। इससे क्या होता है, एवरेज प्राइस बढ़ता है ना पर कंज्यूमर। सो दिस इज नथिंग बट सजेशन, और एवरेज प्राइस बढ़ता है मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास 5 कस्टमर आते हैं महीने के, 5 कस्टमर को आपने 1,000 2,000 का सामान बेचा है,
और आप ऑफर दोगे तो सेम 5 कस्टमर 2000 के बजाय 3000 का शॉपिंग करेंगे, तो आपका सेल बढ़ जाएगा, राइट? तो दीज आर द स्ट्रेटेजीज आपको बिजनेस ओनर को बताना है, जो भी ये शॉप ओनर है उनको आपको स्टडी करके बताना है। तो ये सारा प्रोसेस करने के लिए वे स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग, जो हमने अभी कवर किया, डेटा अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग, एंड देन नेक्स्ट स्टेप हम आगे जाएंगे। अभी होमवर्क उससे पहले एज आप देख लो, यहाँ पे एज कैसे कैलकुलेट करना है, एंड शीट 1 आई वांट टू द फॉर्मेटिंग। शीट 1 पे देखिए डेट, कुछ नंबर्स रैंडम नंबर्स है यहाँ पे, आ गया है नंबर, यहाँ पे एक्चुअल डेट होना चाहिए यहाँ पे नंबर, क्यों? मे बी या कॉपी पेस्ट हुआ है डेटा कहीं से, तो और किसी और पाइथन से कॉपी करके एक्सेल में लेके आया है, नहीं तो एसक्यूएल से कुछ कॉपी करके आया है डेटा यहाँ पे। नंबर फॉर्मेटिंग, राइट? सो यू नो हाउ टू डू द फॉर्मेटिंग। आगे इसलिए देखना पड़ेगा, ये तो टेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट विल बी द ऑनलाइन, इवन इसका क्या आएगा, परसेंटेज का फॉर्मेटिंग क्या आएगा? डिस्काउंट, सॉरी, डिस्काउंट का फॉर्मेटिंग क्या आएगा ऑनलाइन? आपको कैसा डिस्काउंट मिलता है आप जब भी शॉपिंग करने के लिए जाते हो? तो 10%, 20%, राइट? देन इट शुड बी परसेंटेज, तो उसको कर दीजिए परसेंटेज। कैसे करना है? क्लिक और आपको देखिए परसेंटेज, क्लियर? लाइक दिस यू कैन सिलेक्ट, यहाँ पे डेसिमल देना है तो दे सकते हो, नहीं ऐसे ही रहता है ना आपका, वो में जाके यू कैन, क्लियर? सो बाकी का आपको करना है, ओके? होमवर्क आपको क्या करना है? If you are formatting the sales, country is United States or Australia, we can choose here dollars regarding yes rupee. yes absolutely, वो आपको देखना है कि डेटा क्या है। we had a discussion about this, right? तो ये अमेरिका में जो स्टोर है उससे रिलेटेड है, तो आप जब भी करेंसी सिलेक्ट करते हो तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, राइट? डॉलर वगैरह, इट शुड नॉट बी रुपीज, ओके? सबको होमवर्क क्लियर है? ओके चलो, सो नेक्स्ट स्टेप डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, उसके बाद क्विक इनसाइट। क्विक इनसाइट इज नथिंग बट जो आपको विदाउट कैलकुलेशन और विदाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जो आप डेटा इसमें से निकाल सकते हो। सो we'll continue with this example. I see few people are new here. So ये डेटा है, जैसे हमारे इंडिया में डीमार्ट वगैरह रहता है, सेम सुपर स्टोर और बड़े बड़े स्टोर रहते हैं, मे बी आप अमेजोन ले सकते हो, वन ऑफ द एग्जांपल। सो उससे ये डेटा है, कंट्री है, प्रोडक्ट आईडी इज नथिंग बट वो प्रोडक्ट का नंबर वगैरह है कुछ, देन सैमसंग, राइट? डिफरेंट प्रोडक्ट, देन उससे इंफॉर्मेशन कितना सेल हो गया, क्वांटिटी कितना, डिस्काउंट कितना है। बाय द वे आपको सैमसंग का फोन 200 रुपए का कभी आ सकता है क्या?
सो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि वो डॉलर है कि रुपी है, राइट? अंडरस्टूड? क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर प्रायोरिटी। सो वी डिस्कस्ड डेटा अंडरस्टैंडिंग, हमने किया है इसका, होप आपको याद है कल का क्लास। So we discussed about order priority, shipping cost, all these things. One we wanted to ask, data understanding किया है आपने, सबको पता है इसमें क्या क्या है, country क्या है, region. So I want to know कि ये तीन कॉलम क्यों दिए हैं? Okay, country मान लीजिए US में ऑर्डर आया है, ये ऑब्वियसली अमेजोन इंटरनेशनल शिपिंग भी करता है, राइट? तो कौन से कंट्री से ऑर्डर आया है? यूनाइटेड स्टेट्स। रीजन भी दिया है, मार्केट भी है यहाँ पे, राइट? टेक्नोलॉजी सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है सैमसंग। सो व्हाई डू थिंक कॉलम्स? मुझे सिर्फ कंट्री से भी पता चलता था ना, कहाँ से ऑर्डर आया है? यूनाइटेड स्टेट्स से। ये मार्केट और रीजन का क्या काम है उधर? कोड के लिए भी कंट्री ठीक है ना, कहाँ से ऑर्डर है? न्यूजीलैंड से, पता चलता है। ये ओशियाना भी लिखा है, एशिया पैसिफिक, यहाँ पे व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? आपने डेटा अंडरस्टैंडिंग किया है ना, 2 बार किया है, कल भी हुआ है, आज भी हुआ है, तो क्या अंडरस्टैंड किया फिर आपने? डेटा अंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसा नहीं कि इसमें डेटा है कि नहीं देखना है, राइट? व्हाई दैट कॉलम इज देयर इन योर डेटा, ये भी पता होना चाहिए। Sir, I don't get about this market, but region should be more specific about this country. वही है, आपको पूरे कॉलम में पहले तो देखना है कि क्या क्या डेटा है, ये आपने देख लिया, उसका मीनिंग क्या है ये भी आपने समझ लिया, बट वो डेटा क्यों है ये भी समझना इम्पोर्टेंट है। सो क्यों दिया गया है आपको ये डेटा? Because of a broader spectrum defined, like a same product in west is running or east, so same product we can compare in both the Yes. From which market we have got commission? Yes. Online, any response from your side? आपको कुछ बोलना है क्या? Why? Okay, it's exactly said. अमेजोन ऐसा नहीं कि अमेजोन सिर्फ एक कंट्री में है, वो इट इज वर्क्स ऑलमोस्ट अराउंड 90 to 100 कंट्रीज है उसके पास, राइट? और उनको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से कंट्री में अच्छा जाता है और कौन सा प्रोडक्ट कौन से रीजन में अच्छा है। दैट कैन बी वन ऑफ द एनालिसिस वो कर सकते हैं। मान लीजिए आईफोन इंडिया में ज्यादा बिकता है, तो इंडिया स्पेसिफिक वो कुछ ऑफर्स लॉन्च करेंगे, नहीं तो इंडिया स्पेसिफिक कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे, नहीं तो इंडिया में जो फेस्टिवल होता है उसके टाइम पे कुछ लॉन्च करेंगे, राइट? समथिंग लाइक दिस। मे बी किसी और कंट्री में किसी और फेस्टिवल में कुछ रहेगा, तो उसके हिसाब से वो प्लान कर सकते हैं। So that's why you need more detailed, और इसको बोलते हैं ग्रैन्युलैरिटी, मतलब डेटा अलग अलग लेवल पे रहता है, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ऐसा ही रहता है ना इंडिया में जैसा है। मान लीजिए पहले एक डिस्ट्रिक्ट रहता है, फिर डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन करके स्टेट होता है, और स्टेट को कंबाइन करके सेंटर होता है। सेंटर में अलग गवर्नमेंट रहता है, स्टेट में अलग सेंटर। क्यों? क्योंकि दोनों को लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा। सेंटर के पास कितने स्टेट्स है? 30, कितना है? 25 + 7, राइट? समथिंग, आई एम नॉट श्योर। तो दे कैन नॉट फोकस ऑन ऑल द स्टेट्स, तो इसलिए थोड़ा नीचे एक लेवल पे रहता है स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव वाले रहते हैं। तो सेम वे कंट्री रहते, उसके बाद रीजन, फिर मार्केट। आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड मिलके ओशियाना बना है, और जर्मनी एंड सिल मिलके वेस्टर्न, ओके, साउथर्न एशिया में कौन कौन है?
समथिंग लाइक दिस, कंबाइन करके यहाँ पे है। हाँ ओके, चाइना सऊदी मिलके वेस्टर्न एशिया है, वेस्टर्न यूएस और सेंट्रल यूएसए मिलके यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। एशिया पैसिफिक में ओशियाना है एंड साउथर्न एशिया वेस्टर्न एशिया, राइट। सेम डिस्ट्रिक्ट सेंटर स्टेट अलग अलग डेटा। सो दिस इज नथिंग बट अ हायरार्की, इसको बोलते हैं हायरार्किकल डेटा, मतलब इन तीनों के बीच स्पेसिफिक रिलेशन है। ओके ये इसके अंडर आता है, समथिंग लाइक दिस। सो इसको बोलते हैं हायरार्की। क्लियर? ना बोल रहे थे क्विक इनसाइट। सो थर्ड स्टेप इज क्विक इनसाइट निकालना है। क्विक इनसाइट क्या हो सकता है इसमें से? आई वांट टू डेटा प्रॉफिट अकेले बता सकता हूँ कि दिस प्रोडक्ट माइनस 96 समथिंग लाइक दिस। ये मैं इंडिकेट कर, देखिए जो भी ये प्रोडक्ट है मोटोरोला, इट इज लॉस मेकिंग माइनस 96। कहीं है क्या? ये है, देखिए माइनस, तो ये अगेन लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। तो ये देख के आप एनालाइज कर रहे हो और इनसाइट्स निकाल रहे हो, दिस इज नथिंग बट क्विक इनसाइट। और ये करने के लिए देयर इज ऑप्शन फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है, एंड सॉर्ट एंड फिल्टर। ये दो ऑप्शन आप यहाँ पे एफिशिएंटली यूज कर। कैसे? लेट्स यूज द फिल्टर एंड सॉर्ट। में आप जाओगे फिल्टर एंड सॉर्ट और यहाँ इसको फिल्टर, ओके, फिल्टर पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ड्रॉप डाउन। और ये जाके आप क्वांटिटी पे लगा देंगे, सॉरी प्रॉफिट पे लगाना है। सो प्रॉफिट फिल्टर, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एंड आई टू ऑब्जर्व हियर, ये क्या बोल रहा है? एक्सपांड और कंटिन्यू विद करंट। सो आई विल चूज द एक्सपांड एंड देन विल ऑब्जर्व कि क्या होता है। ओके सो लेट्स सिलेक्ट, सारे कलर चेंज हो गए। सबसे पहले कुछ सैमसंग का फोन था, अभी क्या दिख रहा है? मोटोरोला, राइट, क्योंकि डायरेक्टली पता चल रहा है। देखिए दीज टू प्रोडक्ट आर लॉस मेकिंग, ₹10 $10 भी कम प्रॉफिट किसका है? ये दोनों का। सो प्रोडक्ट्स आर लेस देन $10 प्रॉफिट। तो आप ये क्विकली बता सकते हो कि देर आर 4 प्रोडक्ट इन योर इंटायर स्टोर्स की जो लेस देन $10 प्रॉफिट है। नहीं तो 2 प्रोडक्ट ऐसे जो लॉस मेकिंग है, आपको इमीडिएटली इसको बेचना बंद करना पड़ेगा। यू कैन टेल दैट, राइट। और ये कैसे पता चला? और ये भी देख सकते हो। देखिए जो 4 प्रोडक्ट है लॉस मेकिंग, उसमें से 3 यूनाइटेड स्टेट्स में है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो लॉस मेकिंग है। ये वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? टॉप प्रोडक्ट कौन से? और देखिए दिस इज लॉस मेकिंग और डिस्काउंट भी दे रहे हैं, मतलब डबल लॉस है ये तो। मतलब डिस्काउंट देके आपको बेचना है बट आप लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बेच रहे, तो ये आपको बताना चाहिए ना, हाईलाइट करना चाहिए। सो कौन सा प्रोडक्ट है इसको? प्रोडक्ट ऑफिस ऑफिस सप्लाई में स्टोरेज में प्रोडक्ट है,
एक्रोस, स्टैकिंग बिन्स कुछ प्रोडक्ट है, यू शुड स्टॉप सेलिंग इमीडिएटली। ये बता सकते हो ना बिजनेस ओनर को, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। अभी हमने ये लिमिटेड डेटा पे काम कर रहे हैं, इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन आपको प्रोजेक्ट फोल्डर में दिया है, उसमें 1 लाख से भी ज्यादा रो है ऐसे। तो 1 लाख प्रोडक्ट आपको एनालाइज करना है, उसमें से ढूंढना है कि लॉस मेकिंग कौन सा, राइट? ये आपका काम है। और जो स्टोर का ओनर है वो करना चाहिए क्या? मतलब मेरा दुकान है तो मैं, पॉसिबल है कि मेरे लिए ये करना कि मेरे स्टोर में कितने प्रोडक्ट है सबको देखो जाके, ढूंढ निकालो कौन सा लॉस मेकिंग है, क्या है, क्यों लॉस मेकिंग है, राइट? सो इसीलिए हमें डेटा एनालिस्ट लगते हैं। क्लियर? ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड जहां पे हमने फिल्टर लगा के सॉर्ट किया है। देयर इज वन मोर मेथड कंडीशनल करके है, दैट इससे भी और थोड़ा हाईलाइट करता है, कलर वगैरह यूज करता है, दैट विल सी टुमारो, नॉट इशू। बट होमवर्क, डेटा फॉर्मेटिंग एंड क्विक इनसाइट, इसका क्विक इनसाइट अभी हमने निकाला ही। क्विक इनसाइट शीट 2 पे निकालो फिर। शीट 1 डेटा फॉर्मेटिंग, शीट 2 क्विक इनसाइट यूजिंग सॉर्ट एंड फिल्टर। आई गिव यू एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल, ऐसे ही सेम एग्जांपल आप यहाँ पे कर सकते हो। और दो कॉलम जो लास्ट में मेरे थे या मेरे पेपर में प्रॉब्लम है, ये दो, हाँ, so that you can delete, not issue। इसलिए एज क्विक इनसाइट जब निकालोगे ना, तब आपको वो एज कॉलम का हो, मतलब यू कैन यूज द एज कॉलम, इसके लिए वो हिंट है ऑलरेडी। सो यू कैन कैलकुलेट एज एंड देन यू कैन यूज दैट कॉलम फॉर इनसाइट्स। ओके, क्लियर सबको हाउ वी आर मूविंग? स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्मेटिंग एंड देन क्विक इनसाइट। कल हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे एंड देन विल गो अगेन, एक स्टेप आगे जाएंगे। ओके, क्लियर? नहीं तो देयर आर शीट एंड 5 एज वेल, उस पे भी आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो, सेम डेटा है फॉर्मेट। ओके, क्लियर? ऑनलाइन जो भी अवेलेबल है। Okay, I know there is Python class scheduled. ठीक है, Excel maybe we can stop here। आपको कुछ डाउट है तो मैं we can forward।